My dear students, my dear scholars, business in 21st century has been associated with learning. Companies and manufacturers and suppliers must learn from the market. Customers should learn from their customer communities. Employees are talking to the other employees in the other companies. So in other words, whether you call of learning organization concept or the concept of organizational learning, we have seen that the knowledge has become in center place. Information, with its technology of communication and processing, is central to the survival of business. That's why management scholars are asking that the companies and the individuals, इसलिए कि कंपनी बगैर मैनेजर्स के, बगैर एग्जेक्टिव्स के तो किसी काम की नहीं ना. The managers and executives and officers and the workers and the employees working in the company must develop their capabilities, and those capabilities which should be dynamic. Remember that management tool of SWOT analysis? Strengths and weaknesses are inside the company. जो भी हैं. But you must focus on the external environment, because the external environment is dynamic. It is not in your control. It's controlled by the political factor, by the social factor, by the technology factor, and the customers and the employees. They are interacting with the other communities, with the other companies, and information is available through social media, through web, through Wikipedia, through tweets, and the information is getting faster and faster. ये जो G3 और G4 और G5 की टेक्नोलॉजी है, compare the speed and the frequency through which information is available. So with this understanding of business in 21st century, when customers are more aware, they are more knowledgeable, they are quick to give you feedback, they are quick to maybe leave your company and leave your brand and leave your product. So the product or the goods have become a channel of distributing the value. इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो गुड्स डोमिनेट लॉजिक थी बिजनेस की, जो इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी, प्रॉफिट ओरिएंटेड थी, इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड थी, उसमें अब चेंज आ रही है. चेंज इसलिए आ रही है कि नाउ customers are getting information not only about your product on the web, but they are comparing the price. And they're not comparing only the price within the country. They're comparing the price from China. They're comparing the price from other countries. और जहां से उनको मिलती है, ऐसे चैनल्स अवेलेबल हैं जो सर्विस देने के लिए तैयार हैं. Alibaba.com, Draz.pk, Zameen.com, ये वो नए चैनल्स हैं. सोशल मीडिया, फेसबुक, ये वो नए चैनल्स हैं जो कस्टमर्स को, एम्प्लॉइज को अवेलेबल हैं. So then what should companies do? Well, this brings me to a point that in 2004, two professors of marketing at University of Arizona, they presented a new logic. They said, time has come, business requires a new logic. What is that new logic? It's known as service dominant logic. Service has become more important than the goods. मैं उस कंपनी से खरीदूंगा, उस एग्जेक्टिव को बुलाऊंगा जो मुझे कंसल्टिंग भी देगा, गुड्स के बारे में भी बताएगा, और आफ्टर सेल, ड्यूरिंग सेल, वो सारी चीजें मेरे सामने आएंगी. सर्विस डोमिनेंट लॉजिक.
सर्विस डोमिनेंट लॉजिक के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ओपरेंट रिसोर्सेज एंड ओपरेंट रिसोर्सेज। और ओपरेंट रिसोर्सेज वो आपके कन्वेंशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते आए हैं। दे आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। व्हाट इंपॉर्टेंट इज द ओपरेंट रिसोर्सेज, intangible, your skills, your knowledge, the resource which you can act upon the operant resource to add more value, psychological resources, emotional resources, इसकी पूरी एक तफसील है। लेकिन ये लॉजिक, ये थ्योरी, ये मॉडल, ये फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया और इसके 10 फंडामेंटल प्रेमिसेस हैं। इसकी 10 फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं, प्रोपोजिशंस हैं, जो 2004 में प्रेजेंट हुई, एंड नाउ दे हैव रीच्ड एट द एक्सियम लेवल। ये मैं फिलॉसफी की थोड़ी सी बात कर रहा हूं, लॉजिक भी फिलॉसफी में है, एक्सियम भी फिलॉसफी में है, प्रेमिसेस भी फिलॉसफी में है, और थ्योरी जब नई कोई डेवलप होती है तो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। सो दिस थ्योरी, सर्विस डोमिनेंट लॉजिक, एसडी लॉजिक, एज कंपेयर टू जीडी लॉजिक, has become important. इसके 10 फंडामेंटल प्रेमिसेस हैं। पढ़िए, देखिए, कंपेयर कीजिए और सोचिए कि क्या वाकई ये 21st सेंचुरी में दिस इज द वे द बिजनेस हैज टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक यू विल एग्री। मसलन फंडामेंटल प्रेमिसेस नंबर 4, ओपरेंट रिसोर्सेज आर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ओपरेंट रिसोर्स क्या है? आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका ब्रांड, ब्रांड के अंदर इमोशनल पार्ट, ये सारी इसके अंदर शामिल हो गई। लेकिन इसमें इसका जो FP1 है, फंडामेंटल प्रेमिसेस 1, इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच बिकम्स ए बेस फॉर ए न्यू डिसिप्लिन इन बिजनेस विच इज नोन एज सर्विस साइंस। उसकी भी बात आएगी बाद में। क्या है FP1? सर्विस इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ एक्सचेंज। ये जो गुड्स दी और पैसे ले लिए, पैसे इकोनॉमिक वैल्यू है, गुड्स फिजिकल वैल्यू है। आपने मेरी नीड पूरी की, अब मेरी नीड चेंज हो गई है। अब मैं गुड्स के साथ साथ ये देखना चाहता हूं कि जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो क्या मुझे वाकई ये वैल्यू प्रोवाइड करेगी। सो वैल्यू इज नॉट इन द एक्सचेंज नाउ एनी मोर, इकोनॉमिक प्रिंसिपल। नो, वैल्यू इज इन यूज। एंड ऑल इकोनॉमीज और सर्विस इकोनॉमीज, और ये 10 फंडामेंटल प्रेमिसेस अगर आप अपने सामने रखें तो वैल्यू को क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वैल्यू हैज टू बी को क्रिएटेड बिटवीन द सप्लायर एंड द कंज्यूमर, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। Somebody has to propose the value, the other party has to agree. So value has to be co-created by both the parties, both the actors, consumer and the supplier, employee and the employer. नया कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि लर्निंग के पर्सपेक्टिव में अब आपके मैनेजर को, आपके CEO को, आपके मालिक को सब कुछ नहीं पता। सेठ साहब की कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास भी बहुत नॉलेज है, वो चले जाएंगे तो आपकी कंपनी का नॉलेज दूसरी कंपनी में पहुंच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये थ्योरी, ये मॉडल, ये लॉजिक प्राइमरी इंपॉर्टेंस होगी। थैंक यू वेरी मच।